आनंद जी, आकाश आनंद जी, आकाश आनंद जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहन जी मायावती, बहन जी मायावती, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே. நம்முடைய மூதாதையர்கள் மகாத்மா ஜோதிராவ் பூலே அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகிறது. அவரை தொடர்ந்து நம்முடைய சத்ரபதி महात्मा ज्योतिराव फुले पुगल, ஓங்குக, महात्मा ज्योतिराव फुले पुगल, ஓங்குக, महात्मा ज्योतिराव फुले पुगल, ஓங்குக, छत्रपति साहू महाराज पुगल, ஓங்குக, छत्रपति साहू महाराज पुगल, ஓங்குக, तंदै नारायण गुरु पुगल, ஓங்குக, तंदै नारायण गुरु पुगल, ஓங்குக, बाबा साहेब अंबेडकर पुगल, ஓங்குக, बाबा साहेब अंबेडकर पुगल, ஓங்குக, मान्यवर कांशीराम पुगल, ஓங்குக, मान्यवर कांशीराम पुगल, ஓங்குக, तंदै पेरियारिन पुगल, ஓங்குக, तंदै पेरियारिन पुगल, ஓங்குக, मान्यवर कांशीरामिन पुगल, ஓங்குக, बाबा साहेब अंबेडकरिन पुगल, ஓங்குக, बाबा साहेब अंबेडकरिन पुगल, ஓங்குக, बाबा साहेब अंबेडकरिन पुगल, ஓங்குக, महात्मा ज्योतिराव फुले पुगल, ஓங்குக, महात्मा ज्योतिराव फुले पुगल, ஓங்குக, छत्रपति साहू महाराज पुगल, ஓங்குக, छत्रपति साहू महाराज पुगल, ஓங்குக, तंदै नारायण गुरु पुगल, ஓங்குக, बाबा साहेब अंबेडकर पुगल, ஓங்குக, मान्यवर कांशीराम पुगल, ஓங்குக, बाबा साहेब अंबेडकर पुगल, ஓங்குக, तंदै पेरियारिन पुगल, ஓங்குக. அவரை தொடர்ந்து நம்முடைய மரியாதைக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராம்ஜி கௌதம் அவர்கள் தற்போது மரியாதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவரை தொடர்ந்து நம்முடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய ஐயா வீர் சிங் அவர்கள் தற்போது மரியாதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவரை தொடர்ந்து நம்முடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய ஐயா கௌரி பிரசாத் உபாசக் அவர்கள் மரியாதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவரை தொடர்ந்து சமத்துவ தலைவர் அவர்கள் மரியாதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சமத்துவ தலைவர் அண்ணன் ஆம்ஸ்டாங் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பு செய்கிறார்கள். அவரோடு இணைந்து திரு எம் பிரேம், திரு பி வி சுரேஷ், திரு சந்திரசேகர், திரு நாகராஜ் அவர்கள் சமத்துவ தலைவரோடு இணைந்து நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார்கள். இளம் தலைவர் ஐயா ஆகாஷ்ஜி அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பாக இதோ நினைவு பரிசு. என்றென்றும் தமிழக மக்களுடைய இதயங்களிலே நீங்கள் என்றும் நிலைத்து நிற்பீர்கள். உங்கள் சமூக சேவைக்காக தமிழகம் தலை வணங்குகிறது. இதோ உங்களுக்கான நினைவு பரிசு. அடுத்ததாக நம்முடைய தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஐயா ராம்ஜி கௌதம் அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. மாநில துணைத் தலைவர் அண்ணன் மாநில பொருளாளர் அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களும் அண்ணன் தேவேந்திரன் அவர்களும் மாலை அணிவித்து சிறப்பு செய்கிறார்கள். जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. ஐயா ராம்ஜி நம்முடைய தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா ராம்ஜி அவர்களுக்கு அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களும் அண்ணன் தேவேந்திரன் அவர்களும் மாலை அணிவித்து சிறப்பு செய்கிறார்கள். நம்முடைய நம்முடைய இளம் தலைவருக்கு
நம்முடைய பலம் பொருந்திய சின்னமான ஏனை சின்னம் பரிசளிக்கப்படுகிறது. ஜெய் பீம் ஜெய் பீம், ஜெய் பீம் ஜெய் பீம், ஜெய் பீம் ஜெய் பீம். நாளை இந்த நாட்டை ஆள இருக்கிற ஏனை சின்னம் இதோ தமிழர்களின் அடையாளமாக நம்முடைய இளம் தலைவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. அடுத்து நம்முடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா ராம்ஜி கௌதம் அவர்களுக்கு அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களும் அண்ணன் தேவேந்திரன் அவர்களும் மாலை அணிவித்து சிறப்பு செய்கிறார்கள். ஐயா ராம்ஜி கௌதம் அவர்களுக்கு நம்முடைய மாநில தலைவர் சமத்துவ தலைவர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பு செய்கிறார்கள். உடன் சத்தியமூர்த்தி, திரு சார்லஸ், திரு வழக்கறிஞர் பிரபாகரன் அவர்கள். நம்முடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா வீர் சிங் அவர்களுக்கு மாநில துணைத் தலைவர் அண்ணன் மணிவண்ணன் அவர்களும் பெரியார் அன்பன் அவர்களும் மலர் தூவி மரியாதை செய்கிறார்கள். நம்முடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா வீர் சிங் அவர்களுக்கு அண்ணன் மணிவண்ணன் அவர்களும் நம்முடைய மாநில செயலாளர் அண்ணன் பெரியார் அன்பன் அவர்களும் மலர் தூவி மரியாதை செய்கிறார்கள். நம்முடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா கௌரி பிரசாத் உபாசக் அவர்களுக்கு தற்போது நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. மாநில தலைவர் சமத்துவ தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார்கள். உடன் மயிலை முருகன், ஸ்ரீதர் ஷாம் ஆகியோரோடு. May I request our national coordinator, the young and energetic leader, Mr. Akash Ji, for deliver the address the gathering here. Welcome, welcome. अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा. எனது பேச்சில் ஏதும் தவறு ஏற்படுமேயானால் என்னை தயவாய் மன்னித்து விடுங்கள். आज यहाँ पे आप सब हमारे बड़े, हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें इतनी बड़ी संख्या में मेरे को सुनने यहाँ पे आई हैं. इसके लिए मैं अपने हार्दिक दिल से आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ. आपका भाई, आपका छोटा बेटा, आपका बड़ा बेटा यहाँ पे पहली बार आया है. आपकी बहन जी ने भेजा है मुझे. यहाँ पे आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अपने BVF जवानों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे हैं. साथियों, सबसे पहले मैं अपने भारत देश में समय समय पर जन्मे महासंतों, गुरुओं व महापुरुषों, खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी तथा इनके बताए हुए रास्ते पर चल रही एवं इनके अधूरे पड़े कारवां को मंजिल तक पहुंचाने वाली मेरी खास आदर्श व खास प्रेरणा तथा हम सबकी सम्मानित माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, संसद के कई बार लोकसभा एवं राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. इन सभी को मैं हार्दिक दिल से नमन व पूरा आदर सम्मान करता हूँ. साथियों, जैसे कि आपको पता है, आपके तमिलनाडु स्टेट में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं. हमारी पार्टी ने, BSP ने भी इन चुनावों में अपने कई यंग, कई एक्सपीरियंस्ड, कई होनहार कैंडिडेटों को भी खड़ा किया है, जिनके समर्थन में उनको
चुनाव में जिताने के लिए आपसे अपील करने मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में आपके स्टेट में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करे हैं, जिनमें कई पार्टियां यहां अपनी सरकारें भी चला चुकी हैं, परंतु अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ सदियों से आज भी जातिवादी व्यवस्था के शिकार चल रहे खासकर दलित, आदिवासियों, पीड़ित वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अभी तक भी अपने पूरे तरीके से अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दिया है। और इन वर्गों के लोगों को हमेशा से हर स्तर पे अत्याचार होते रहे हैं और इनके सुनने वाले कोई नहीं है। कोर्ट कचहरी में भी इनके मामले सालों तक लटका दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, कस्तूरी मर्डर केस, शंकर मर्डर केस, ऐसे कुछ आधार हैं जिनके चलते हुए यहाँ पे सरकारों ने कुछ इंसाफ नहीं दिलाया है हमारे लोगों को। हमारे सब लोग इतने पीड़ित, इतने पीछे रह चुके हैं कि हमारे पास पैसे भी नहीं होते इन केसों को लड़ने के लिए। और यहाँ की सरकारें हम जैसे लोगों पे सालों से, सदियों से अत्याचार करती आ रही है। इसके अलावा कोरोना ने जो इस समय में हमारा हाल किया है और जो इस समय सरकार ने हम जैसे लोगों की मदद नहीं करी, ये भी किसी से छुपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सलाह मानकर उनके बताए हुए रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। माने यहाँ पे अब हमें अपने पैरों पे खड़े होके अपनी सरकार बनानी होगी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैंने अपने काफ़ी अथक प्रयासों व संघर्षों के बाद अपने वर्गों के लोगों के लिए इस भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दिलाया है, लेकिन इन कानूनों को पूरी तरीके से लागू कराने के लिए हम सबको अपनी मास्टर की सत्ता में आना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी पार्टी बीएसपी ने अपने लोगों को तैयार करने के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब समय आता है इलेक्शन का, जब समय आता है आपसे वोट मांगने का, तो ये विरोधी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो को दिखा के, जो खूबसूरत दिखते तो हैं बट कभी लागू नहीं होते, जब आप इन्हें वोट दे देते हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है कि इस बारी इन लोगों की मैनिफेस्टो झूठे वादों के में बह के नहीं आना है और अपनी सच्ची पार्टी बीएसपी को ही वोट देना है। श्री मान्यवर काशीराम जी ने जीते जी व उनके देहांत होने के बाद भी वर्तमान में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हम सब की सही मार्गदर्शक और खास प्रेरणा माननीय बहन कुमारी मायावती जी रात दिन पूरे जी जान से इस सपने को पूरा करने के लिए लगी हुई हैं। और अब उन्होंने आप लोगों के बीच में मेरे को भी भेजा है। आज का माहौल देख के लग रहा है कि आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे यहाँ वापस बुलाया है कि अब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। परंतु यदि आप लोग ये चाहते हैं कि हम सब एकजुट होके हम सब विकास चाहते हैं, अर्थात तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पूरा लाभ चाहते हैं,
और साथ ही जुल्म और अत्याचार से भी निजात पाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी व अन्य मेहनतकश लोगों को भी लाभ भला करना चाहते हैं। तो फिर आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के इनके बताए हुए रास्ते पर चल रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी की सलाह मानकर यहाँ अपने स्टेट में बीएसपी के जनाधार को बढ़ाना होगा। तभी फिर यहाँ आपकी बीएसपी चुनाव में अपना अच्छा रिजल्ट दिखा सकती है। हालांकि यहाँ हमारे बीएसपी के स्टेट यूनिट एवं केंद्रीय यूनिट कोऑर्डिनेटर भी इस कार्य में अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और अब यहाँ विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ साथ मैं भी माननीय बहन जी के आदेश अनुसार चलकर यहाँ बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता से अपील करता हूँ कि आप सब जी जान से अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरी मेहनत से लगे रहें। यहाँ से विधानसभा का रास्ता मुश्किल है, कठिन है, परंतु आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दूसरी पार्टियों के साम दाम दंड भेद हथकंडे आदि हथकंडों से भी ज़रूर सावधान रहना होगा। सावधान के साथ साथ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपकी पूरी बीएसपी साथ खड़ी है और इसी मामले में खासकर इनके जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के बहकावे में नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद कभी पूरा नहीं करती। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए आपसे अनुरोधन करता हूं। बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। आप लोग हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के यहाँ अपने उम्मीदवारों को ज़रूर कामयाब बनाएं, क्योंकि आपके चुने हुए कैंडिडेट्स अगर जीत गए तो यही आप सबके साथ खड़े होंगे आपकी मुश्किल समय में। आप लोगों की ताकत हमारी ताकत है और हम लोग अब पीछे नहीं मुड़नेंगे। वह इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं आप लोगों से यहीं रजा लेता हूँ। जय भीम। இந்த சொல்லோடு எனது நான் உரையை நிறைவு செல்கிறேன். ஜெய் பீம். जय भीम, जय भीम, जय भीम।